आप किसी भी कैट टॉपर से बात करोगे वो आपको एक ही चीज बोलेंगे कि कैट के लिए एक एग्जाम स्ट्रैटेजी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. Preparation is definitely an important component of CAT. However, apart from preparation, you also need to do some smart work where you have a clear-cut strategy. कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, हाउ टू मेक श्योर दैट यू मैक्सिमाइज योर स्कोर, ये सब डिफाइन होगा आपके अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी से. मैंने जो फर्स्ट मॉक लिया था उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वर्सेस जो लास्ट मॉक लिया था उसमें बहुत डिफरेंस था. एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ मल्टीपल मॉक्स दैट आई हैड टेकन इन बिटवीन. एंड मैं एवरी मॉक में एक्सपेरिमेंट करता गया, न्यू स्ट्रैटेजीज लेता गया, एंड विच एवर वर्क्स फॉर बेस्ट फॉर मी, आई स्टक टू दैट. And for you as well, what I will do in this video is I will tell my attempt strategy for each of the sections, verbal, LRDI and quant, and I will also tell you attempt strategies of my friends as well. They had also scored like more than 99.8 percentile, so I talked to them about their strategies and it was kind of different from mine as well, a little bit different obviously. However, they also ended up with a good result. So I will tell you my strategy and their strategies as well, so you have different options, and what you need to do is apply those different options, experiment in the mocks, and then come up with something that suits the best for you. एंड ये एग्जाम स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए आपको मॉक्स से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. एंड आई विल सजेस्ट यू टू बाय 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉक सीरीज फॉर दिस. एक होगा जहां पर आप परसेंटाइल में कॉन्सेंट्रेट करोगे एंड यू विल ट्राई टू बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर पीपल अपियरिंग फॉर कैट. एंड इसके लिए आप करियर लॉन्चर, IMS या टाइम का मॉक्स दे सकते हो जो बहुत लोग देते हैं. एंड यू कैन बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस एंड अपियर फॉर दीज मॉक्स जस्ट लाइक यू आर अटेम्प्टिंग अ रियल कैट एग्जाम. नो एक्सपेरिमेंटेशन और नथिंग हैपेंस हियर. You are dead serious in these mocks and you should be worried about your results in these particular mocks. And आप एक और टेस्ट सीरीज बाय करो जहां पर which will be even more important because now you will be experimenting with different mocks. आप एक्सपेरिमेंट करो, different strategies use करो different mocks में. Percentile, do not concentrate much on the percentile, but rather focus more on how convenient you are using that strategy and if you're able to improve your marks or not. And ये mock test series होगा जहां पर आप experimentation करोगे by giving multiple number of mocks. You should appear for 30 plus mock tests and I had appeared for 40 mock tests. If you can reach 40, it's absolutely great. उनमें से आप 25 mocks try करो experiment करने का with new strategies and 15 mock tests appear very seriously just like you are attempting the CAT paper. And for experimenting with multiple mocks, you might need an affordable test series. So I can suggest you here StudyBus का एक mock test series है, which is like in 1500 rupees, you get 30 full length mock tests. 24 sectional tests है and topic tests भी है from easy to difficult level. And of course the best thing about that is also the previous year papers are available in the form of mocks which you can attempt and I will definitely recommend you to attempt that as well. ये mock test series अभी आपको 40% discount में मिल रहा है, which means every mock you are getting at simply 50 rupees price. So the link is there in the description. You can go and buy it from there. So coming to my attempt strategy and starting with verbal, in the initial few mocks I was scoring very bad in the verbal section and I was not able to figure out how to go about it. After appearing for multiple mocks and checking the pattern, I noticed one particular thing here, that if I'm attempting a question in under 2 minutes versus attempting a question in 4 minutes, chances of getting it wrong are almost the same. मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया यानी कि उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा. अनलाइक LRDI एंड क्वांट जहां पर आप जिस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दोगे, probability of making it correct probably increases because you are more careful. However, verbal में आपका जो thought process first 2 minutes में होगा, हो सकता है वो सही हो and after overthinking for another 2 minutes, probably you might get it wrong as well. So the idea that I got was that इसमें overthinking on any question is not working out and my accuracy probably is not going to increase. What I need to do here is increase my number of attempts. And if I attempt all the questions in the verbal section and my accuracy is even at 70%, still I will get a very good percentile in my CAT exam. So that is the strategy I went with. I had no way of improving my accuracy and that's why I decided I have to increase the number of attempts in the verbal section. So verbal में ये decided था कि I am going to attempt all the questions in that particular section. इसलिए I will not waste time in looking for the right questions. I will start attempting from the first question itself.
मैं फर्स्ट आरसीज होते थे ऊपर, तो मैं फर्स्ट आरसी से सब कुछ सॉल्व करना शुरू कर देता था. द ओनली केस वेयर आई विल लीव अ पर्टिकुलर आरसी इज व्हेन मैं पहला 2 लाइन मैंने रीड किया एंड अगर मुझे उसको रीरीड करना पड़ा, यानी कि जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो मुझे कुछ समझ नहीं आया एंड मुझे उसमें वापस पढ़ना पड़ा एंड स्टिल आई फाइंड इट डिफिकल्ट, ओनली इन दैट केस आई विल लीव द आरसी. कैट में यूजुअली ऐसा आरसी नहीं होता है जिसका राइटिंग स्टाइल बहुत डिफिकल्ट हो. दैट्स वाई कभी भी प्रीवियस ईयर कैट पेपर देखोगे तो मुझे ऐसा वापस किसी आरसी को छोड़ना नहीं पड़ा था. हाउएवर इन मॉक्स इट इज पॉसिबल एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एज वेल. हाउएवर अगर ऐसा केस नहीं हो कि मुझे आरसी का अगर राइटिंग स्टाइल समझ आ रहा है तो मैं सीक्वेंशियली सब आरसीज पहले कंप्लीट करूंगा एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द आरसीज देन आई विल जंप टू द क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एंड द पैराजंबल क्वेश्चंस आई विल बी अटेम्प्टिंग इट एट द एंड. जितना भी टाइम बचा हो, यूजुअली लास्ट में 4-5 मिनट्स बचा होता था एंड आई यूज्ड टू हैव लाइक 3 मिनट्स और 3 पैराजंबल्स लेफ्ट, सो मैं वो अटेम्प्ट करता था लास्ट 5 मिनट्स में. हाउएवर वर्बल में मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने काफी फ्रेंड्स से बात किया, उनके स्ट्रैटेजी ऐसा था कि वो बहुत सारे आरसीज कंटिन्यूसली पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते थे. तो वो क्या करते थे, वो लाइक 1 और 2 आरसी सॉल्व करते थे, उसके बाद दे वुड जंप टू द क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, उसके बाद वो फिर नेक्स्ट आरसीज में आते थे एंड दे यूज्ड टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ आरसीज एज वेल इन विच दे विल अटेम्प्ट. अगर कोई बहुत फेमिलियर सब्जेक्ट है तो वो पहले पढ़ेंगे सो दैट उनका ब्रेन एक्टिव रहे फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द एग्जाम. ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लगी मुझे, बट मुझे सूट नहीं की. मैं आई यूज टू अटेम्प्ट इट वेरी सीक्वेंशियली. मैं टाइम वेस्ट करता ही नहीं था देखने में कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आरसी अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है. मुझे तो तब 34 क्वेश्चन होते थे, मुझे तो 34 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था एंड वट एवर एक्यूरेसी रहे, अगर उसमें 70% एक्यूरेसी आ जाए देन ऑल्सो आई न्यू आई विल स्कोर अ गुड परसेंटाइल. तो आप इन दोनों ऑप्शंस में से खुद ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, आपके लिए क्या वर्क कर रहा है एंड विच एवर सूट्स यू द बेस्ट, टेक दैट एज द फाइनल वन. नेक्स्ट इज LRDI एंड LRDI में अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है. द रीजन बीइंग कौन सा सेट छोड़ना है, कौन सा सेट अटेम्प्ट करना है, LRDI का परसेंटाइल ग्रेटली इंपैक्ट होता है इससे. एंड इसलिए फर्स्ट 6 to 8 मिनट्स में, तब 8 सेट्स होते थे पेपर पे, सो फर्स्ट 6-8 मिनट्स में मैं ऑल द 8 सेट्स से गो थ्रू कर लेता था, एटलीस्ट ग्लांस कर लेता था एंड आई यूज्ड टू डिसाइड इन दोज फर्स्ट 6 मिनट्स कि फर्स्ट सेट कौन सा होगा जिससे मैं पेपर स्टार्ट करने वाला हूँ एंड 7th and 8th सेट कौन सा है जिसको मैं पेपर में अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ. एंड इट वॉज वेरी इजी टू फिगर आउट दोज 2 डिफिकल्ट सेट्स फॉर मी. ये ऑब्वियसली आपके प्रैक्टिस से आएगा, बट यूजुअली जो वेन डायग्राम का बहुत इन्फॉर्मेशन वाला सेट होता था मैं वो अवॉइड कर देता था. गेम्स एंड टूर्नामेंट का कोई बहुत डिफिकल्ट सेट हो मैं वो अवॉइड करता था, या फिर कोई अरेंजमेंट वाला सेट हो जैसे A सिटिंग टू द राइट ऑफ B और उस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट हो, लाइक 12-13 पॉइंट्स मेंशन्ड हो, तो वो यूजुअली डिफिकल्ट सेट होगा, वो मैंने फिगर आउट कर लिया था. अगर उसमें 7 या 8 पॉइंट्स हो तो वो इजी सेट बन जाता था. तो ये आपको प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ेगा कि आपका कन्वीनियंस कहाँ लाई करता है. ये आप जब मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उससे आ जाएगा. एंड इसलिए फर्स्ट 6 मिनट्स में मैंने डिसाइड कर लिया कि कौन से सेट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एंड कौन सा सेट मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाला हूँ, 2 सेट. और जो बीच के सेट बचे हैं, 5 सेट बचे हैं बीच के, उनमें से मैं डिसाइड कर लेता था कि और 4 सेट मुझे अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज मेरा टारगेट होता था कि मैं 5 सेट्स अटेम्प्ट करूंगा आउट ऑफ दोज 8. पहले मैंने ग्रेजुअली इंक्रीज किया, ये पहले मैंने 3 टेस्ट से शुरू किया था कि मैं 3 सेट्स अटेम्प्ट करने वाला हूँ, उसके बाद मैंने 4 किया, उसके बाद ग्रेजुअली एट द एंड जब मैं कैट के जस्ट फाइनल 5-10 मॉक्स दे रहा था उसमें मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं 5 सेट्स टारगेट करने वाला हूँ, विच मीन्स मैंने ऑलमोस्ट 6 to 8 मिनट्स दे दिया. तब 60 मिनट्स होता था, विच मीन्स 50 मिनट्स ऑलमोस्ट पड़ा है अभी भी. एंड ईच सेट मतलब 10 मिनट्स का हो गया कि मैं एवरी सेट 10 मिनट्स में ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, सो दैट आई एम एबल टू सॉल्व 5 सेट्स. LRDI स्ट्रैटेजी में मैंने ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट देखी ही नहीं है. बस इतना डिफरेंस होता था किसी के स्ट्रैटेजी में कि वो पहले ही मार्क कर लेता था कि 1 2 3 4 की उसका 5 सेट क्या होने वाला है जो वो सॉल्व करेगा इन अ सीक्वेंस 1 2 3 4. वो ऑलरेडी सेट्स में मार्क कर लेता था. ऑन दी अदर हैंड मैं बस इतना डिफरेंस रखता था कि मैं ओनली द फर्स्ट सेट डिसाइड करता था जिससे मुझे पेपर स्टार्ट करना है, सो दैट मेरे नर्व्स थोड़े काम डाउन हो जाए आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट सेट. उसके बाद मैं ज्यादा सोच पाऊं एंड 2nd 3rd 4th 5th मैं बाद में डिसाइड करता था आफ्टर सॉल्विंग द फर्स्ट सेट कि वो 2nd 3rd 4th सेट कौन से होने वाले हैं. तो आप देख सकते हो आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, बट मोर और लेस स्ट्रैटेजी सेम ही है. आप फर्स्ट 6 मिनट्स में फिगर आउट करोगे कि कौन सा सेट आपको छोड़ना है, कौन सा सेट अटेम्प्ट करना है, या तो आप सीक्वेंशियली नोट डाउन कर लो 1 2 3 4 5 ये सेट्स होने वाले हैं, या फिर आप शुरू करो पेपर फ्रॉम द इजीएस्ट सेट एंड देन डिसाइड थ्रू द प्रोसेस कि कौन सा सेट आपको अटेम्प्ट करना है 2nd 3rd 4th में. नेक्स्ट है क्वांट
1 की स्ट्रैटेजी, एंड इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस भी मिल जाएंगे, बट मैं पहले आपको अपनी स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। सो इसमें मैं सीक्वेंशियली जाता था, 1 to 34 जाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं फर्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा, मैंने डिसाइड किया कि वेदर आई विल बी एबल टू सॉल्व इट विद इन 2 minutes और नॉट। अगर मैं उसको 2 minutes में सॉल्व कर सकता हूँ, मैंने सोचा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आई विल डू दैट प्रॉब्लम देन एंड देयर एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद मैं नेक्स्ट में गया, मैंने देखा अगेन कि मैं उसको 2 minutes में सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, सॉल्व कर दिया वहां पर। ऑब्वियसली समटाइम्स इट यूज्ड टू हैपन दैट मैंने सोचा है 2 minutes में सॉल्व होगा, बट वो हुआ नहीं, वो 3 minutes चला गया, बट इट्स फाइन। अगर मैं उस प्रॉब्लम को देखता हूँ एंड मुझे लगता है कि वो शायद 2 minutes में सॉल्व नहीं हो पाएगा, देन आई वुड मार्क इट फॉर राउंड 2। मैं उसको बस क्या करूंगा, मैं उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाऊंगा। बट अगर वो ऐसा प्रॉब्लम है जो मैंने रीड किया 5 seconds और मुझे समझ ही नहीं आया कि उसको सॉल्व करना कैसे है, देन उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू नहीं करूंगा, दैट आई विल कीप फॉर राउंड 3, विच मीन्स मैंने जो भी ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि टाइम टेकिंग है बट मैं सॉल्व कर लूंगा, दैट हैज बीन मार्क फॉर रिव्यू एंड आई विल रिटर्न टू इट एट राउंड 2। वेराज जो मुझे लगता है कि मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा और मुझे एकदम एग्जैक्टली समझ नहीं आया है, दैट आई विल कीप फॉर राउंड 3। सो मैं ऐसे ही जाता था, लाइक 1 to 34 क्वेश्चंस मैं पूरा सॉल्व करूंगा, जितने भी राउंड 1 में हो जाए। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50% क्वेश्चंस मैं जब सॉल्व करता था हो जाते थे इन राउंड 1। आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस होते थे मार्क फॉर रिव्यू, जो मुझे लगता था ज्यादा टाइम है, मैं उनमें वापस रिटर्न करता था एंड उसमें रिटर्न अगर वो भी सॉल्व हो जाए, देन ओनली आई यूज्ड टू गो टू द राउंड 3। बट राउंड 3 में यूजली 3 या 4 क्वेश्चन ही बचे होते थे एंड यूजली टाइम नहीं होता था उनमें रिटर्न होने का। एंड आई विल लेट यू नो, एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई यूज टू यूज दिस स्ट्रैटेजी बिकॉज आई वॉज फेयरली कॉन्फिडेंट इन क्वांट। ये मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन था एंड इसके लिए मैं क्या करता था कि मुझे पता था कि 34 क्वेश्चंस होता था, तो उसमें से मैं 28 to 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला हूँ। इसलिए सीक्वेंशियली जाना, जस्ट 5-6 seconds देना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को टू जज इफ आई विल बी एबल टू सॉल्व इट क्विक और विल इट टेक टाइम और विल आई नॉट बी एबल टू सॉल्व इट, ये हो जाता था। एंड दैट इज वाई मैं सीक्वेंशियली जाके उसको खत्म करता था पेपर को। अगर आपकी क्वांट बहुत स्ट्रांग नहीं है, देन यू कैन नॉट यूज दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अदर, बिकॉज ये इससे क्या होगा, आप जो इजी क्वेश्चंस हैं उसमें हो सकता है कि आप मिस आउट कर जाओ। सो इफ योर क्वांट इज नॉट दैट स्ट्रांग, देन मैं सजेस्ट करूंगा आप एक ऑल्टरनेटिव मेथड अप्लाई करो क्वांट में, दैट इज सिमिलर टू LRDI। दैट इज फर्स्ट गो थ्रू ऑल द 34 क्वेश्चंस एंड मार्क those questions which you will attempt in round 1। इससे क्या होगा, अगर आप सीक्वेंशियली जाते हो तो हो सकता है आप रिकग्नाइज नहीं कर पाओ, आप अगर क्वांट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एंड आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया एंड वो सॉल्व नहीं हुआ, एंड यू कैन मिस आउट ऑन द वेरी इजी क्वेश्चंस एट द एंड। सो दैट्स वाई पहले 34 क्वेश्चन से गो थ्रू करो, मार्क दोस क्वेश्चन विच विल अटेम्प्ट इन राउंड 1, उसको अटेम्प्ट करो, उसके बाद राउंड 2 में जाओ, उसके बाद राउंड 3 में जाओ। वेरी सिमिलर टू व्हाट यू वर डूइंग इन LRDI एज वेल। आपको तब 34 क्वेश्चन से, तो मैंने कभी कभी ये ट्राई किया था मॉक्स में, इट डिडंट वर्क आउट रियली वेल फॉर मी, बट मुझे लाइक 8 minutes लगता था, अराउंड 6 to 8 minutes लगता था यहाँ पर भी टू गो थ्रू ऑल द 34 क्वेश्चंस। बट मुझे लगता था कि वो 8 minutes मेरा वेस्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई आई स्टॉप डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। हाउएवर आप अगेन यहाँ पर भी देख सकते हो, आप मेरी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी देख लो कि आप सीक्वेंशियली इफ यू आर मोर कंफर्टेबल, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो देन यू कैन स्टिक टू दैट अप्रोच वेयर यू गो थ्रू द एंटायर पेपर एट वंस एंड बेस्ड ऑन दैट यू अटेम्प्ट योर राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 क्वेश्चन। क्वांट में एक और स्ट्रैटेजी मैंने सुना है, लाइक पीपल लाइक सीक्वेंशियली बस सॉल्व करते हैं, अगर वो सम सॉल्व हो रहा है वट एवर टाइम इट टेक्स दे विल सॉल्व इट देन एंड देयर। इसमें कोई राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का झंझट नहीं लेते हैं। हाउएवर आई थिंक दैट्स फॉर द अल्ट्रा प्रो पीपल। So like the friend that I had discussed this with was a 100 percentile in CAT and he was I think very sure कि वो 34 में 34 अटेम्प्ट ही कर लेगा। सो प्रॉब्ली उस पे वो वर्कआउट कर सकता है, बट आई यूज टू फील कंफर्टेबल इन नॉट अटेम्प्टिंग दोज प्रॉब्लम्स विच आर लाइक विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अदरवाइज मुझे लगता था कि मैं शायद इजी क्वेश्चंस छोड़ दूंगा। सो again it's completely up to you. I've given you different alternative options. आप try करो different mocks में and try to figure out for yourself whatever works the best for you. So this was my CAT attempt strategy. If you have any doubt, let me know in comment. As I've said before, I will try to be as active and as connected with you as possible for the next 3 months so that you can crack your next dream B school. And if you haven't subscribed to the channel, do so right now, and best of luck and see you in the next video.